Yes, Jaspreet. Welcome to the summer camp organized by NAV Merit. This summer camp has a lot of fun-filled activities and sessions, which are going to focus on various aspects like your career, your health, hygiene, well-being, and technology. So, our very first session is going to talk about job readiness for the corporate world. And the speaker for today is Mr. Rajneesh Dwivedi, who is working with IBM Bangalore as software development engineer. Rajneesh completed his BTech in mechanical engineering in 2012 and has a successful career of 8 years in the corporate sector despite his 25 to 30% vision remaining. And he uses screen readers and magnifiers to do his things. Today, he's going to talk about how to prepare yourself for the corporate sector. Rajneesh, it's a great privilege for us to have you with us. Yeah, thanks, Yeah. Jaspreet. Thanks, Poonam ma'am, for giving me this opportunity. So, hello everyone. I am Rajneesh. This session, I think, like I demanded from ma'am last 6 or 8 months back when we were doing Java session. So, there was a talk between me and ma'am that we should have a session like preparing for the job. So, when I was in college, mostly like in third year or fourth year, they have like sessions for job preparation, and there were campus being organized from the college. But when I saw like in most of the other colleges or something, like it's starting, but for, for now, like what I feel is it's not at that level that how to prepare, especially when you have a vision problem. So even it was during my college days when I was actually preparing for the job, I have a lot of doubts. What should I do? What will be the company's culture? Whether they will accept me or not, right? And how can I apply? Like the first thing which came to my mind is like, okay, I should prepare for a government job. So the government, at least they have some sort of rules, some sort of reserved seats which are allocated, especially for visually impaired. So I think like that should be the best choice. And I, to be frank, like I opted that option also. Like after my college days, I thought like I will actually start with government job preparation and I will continue with that only because there are no opportunities in the private world. That was my thinking at that time. And when I came here in Bangalore, I think like a lot of people thought was the same. Like I should only prepare for the government job because there are no private job opportunities. And I think 2012, when I passed out my engineering, after that, like the first step, I started because I was a mechanical, like I'm a mechanical engineer. And the reason for taking mechanical was also the same, like because I used to think computer at that time was not very accessible for visually impaired. So I thought like, okay, mechanical engineering, there will be lot of job openings. So my only preference when there used to be a selection seat selection process in All India Engineering Entrance Exam. You have to go to respective center and you have to select seat. And my only choice was mechanical or I think electrical kind of engineering. And when I graduated, I thought, okay, there will be a lot of opportunities. I started preparing for GATE. GATE is an entrance exam for MTech. Plus, like you can get job in PSUs. So, and parallelly, I was thinking like I will prepare for engineering services. So there is an exam for like chief engineer in the government for similar to IAS. There is an exam called IES, Indian Engineering Services. So that all set in my mind. I just came back to my home and I started preparing for only government jobs. And I sat for almost like I have given exam and
to be frank, like I was not selected. And the first year when I had given the exam and I was not selected, it was a major disappointment for me. And I started thinking, what will I do next? Because the hope was only with the government, and at that time I was not much aware of like banking services. So I was only applying for engineering jobs, and there also the opportunities were very less. So 2013 went like this, and after a time, like I was fond of like reading things in the internet, and mostly I used to spend my time over like reading articles, reading biography. From the beginning itself, I love to read biography. So even when I was in my school days, I used to read biography of like poets and all. So an article came at that time for a girl. Uh, she was visually impaired in 2005, and she have written her story over like job, corporate job, and uh, I just after that like reading her story, I came to know about Uh, the रजनी सर, yeah. सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज थोड़ी दब रही है सर. So one और रजनीश hmm. रजनीश Yeah, man. थोड़ा थोड़ा बीच में आप हिंदी में भी बताते जाइए. Okay, okay. हाँ, कीप इट बायलिंगुअल. थैंक यू. हाँ हाँ, श्योर श्योर. अभी थोड़ा क्लियर है क्या? 1 मिनट, अदरवाइज मैं एक बार मोबाइल से ज्वाइन करने का ट्राई करता हूँ. हाँ, आप कर लो, क्लैरिटी उससे ज्यादा हो जाएगी. हाँ. Okay, and the participants, for the participants, आप कोई भी जो questions है, doubts है, you can note them at your end, ठीक है? And then we'll give you an opportunity to ask the same, okay? और बाकी कुछ अगर issue है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, you can write in the chat box. But को म्यूट करने का आई ऑप्शन थिंक क्वेश्चन भी अगर आप लोग बाद में अगर उसमें करो तो वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर. और अगर कहीं पे कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या आप चाहते हो तो आप उसमें लिख दो, पर छोटा क्वेश्चन लिखना, बहुत लंबा वाला नहीं. अभी तक जो सर ने बताया वो ये बताया कि उन्होंने किस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पहली चॉइस उस टाइम गवर्नमेंट जॉब ही थी और वो उसी के लिए ट्राई कर रहे थे जिसमें उनको बहुत सफलता नहीं मिल रही थी, पर वो अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे थे और बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ रहे थे, आत्मकथा कई लोगों की. Hello. हाँ रजनीश. Yeah. So is it audible now? Yeah, it is much Yes. Now it's very nice. अभी बिल्कुल Okay, clarity. okay. I think it's from mobile. So computer was having some problems. okay. Yeah. So मैं ये अभी तक मैंने ये बताया कि when I have completed my engineering, तो जैसा सबके दिमाग में होता है वैसे ही मेरे दिमाग में भी था कि बस गवर्नमेंट जॉब करनी है और कोई प्राइवेट अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो लेकिन उसी दौरान मैं हमेशा से मुझे लगता था कि मैं बायोग्राफी पढ़ने में मुझे काफी इंटरेस्ट था. आज भी इनफैक्ट मैं जो है बायोग्राफी पढ़ता हूँ. तो आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मुझे जो है एक आर्टिकल मिला. एक लड़की ने अपनी बारे में लिखा था. वहां पे उसने बताया कि कैसे वो IBM एंड सरप्राइजिंगली दैट हर जॉब is in IBM itself, and today she is when I saw her profile, like I think last year, she was head for Asia Pacific in HR department. So not only India, she is the head for HR operations in Asia. So मैंने वहां पे सोचा कि अगर
इसे मिल सकता है, ये मतलब कंपनीज जो है इंटरेस्ट दिखा रही हैं, इसका मतलब कोई तरीका होगा जिससे जॉब मिल रही होगी कंपनी में। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड ओके देयर इज सम अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट वर्ल्ड। एंड मतलब ना मुझे लगता था ना मेरी फैमिली को किसी को लगता था प्राइवेट वर्ल्ड में कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी। Which Then- year was that, Rajneesh? It was 2013 and 12 time. मतलब 10 साल पहले आपको लगता था कि प्राइवेट उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? हाँ, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि प्राइवेट में कोई क्यों जॉब देगा, अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड से चुने या नॉन विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो ऑब्वियसली मेरे को लगता था कि वो विजुअली इम्पेयर्ड को क्यों चुनेंगे अगर उन्हें एक सेम टाइप का बंदा जो है इंजीनियरिंग और उस कैटेगरी का बंदा उस लेवल पे मिल रहा होगा। तो ये मेरे थॉट प्रोसेस पे था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। एंड विद दैट थॉट प्रोसेस, और आसपास भी सब लोग यही बोला करते थे कि गवर्नमेंट जॉब ही बेटर होगी, तो मैंने हमेशा से यही सोचा कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और उसी के लिए मैं डेडिकेटेड था। लेकिन आफ्टर रीडिंग हर स्टोरी मैंने सोचा कि चलो एक चांस देते हैं। And I thought since my brother was living in Bangalore, that was a plus point for me. And I convinced, like telling her story only, I convinced my father that I will go to Bangalore. And after that, like I think in 2014 or something, February, I came to Bangalore. And there my primary point of contact was Enable India. So because I thought like directly reaching out company is tough, rather than reaching out with an NGO, or I can say a consultancy which actually deals with person with disability. So यहाँ पे मेरा एक पहला लेसन सबके लिए जो मैं चाहूंगा देना वो ये है कि अगर आप ये बस सोच रहे हो कि आप बैठे हो और कोई आएगा आपके पास, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद उस पॉइंट से, उस जगह से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने जबलपुर से पढ़ाई की है, ट्रिपल आईटी का काफी बड़ा कैंपस होता है, काफी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, और मतलब वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खाना से लेके हर चीज एक अच्छी कंडीशन पे आपको मिलेगा। और जबलपुर ऐसा भी, बेंगलोर जैसा इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रोड क्रॉसिंग या फिर किसमें। तो मेरा माय ब्रदर्स फर्स्ट थॉट वाज हाउ ही विल ट्रेवल, मतलब ये ट्रेवल कैसे करेगा रात में, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट ही दिया है, क्योंकि माय फादर वाज मैनेजर इन बिरला कॉर्पोरेशन, सो बिरला सीमेंट इज इन मैहर। सो देयर एक कॉलोनी होती है जहां पे सब कॉलोनी के अंदर रहते हैं, कोई ना इतनी तेज गाड़ी चलाता है, आप काफी अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो। सेकंड, मैंने कॉलेज भी जब ट्रिपल आईटी से किया, वहां भी कैंपस था, और फिर मेरे फूफा वहां रहते थे जबलपुर में। तो इतने प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट से जब आप बाहर निकलो तो पहला चिंता ऑब्वियसली यही होता है कि कैसे ये रोड क्रॉस करेगा, कैसे जो है ये जाएगा वहां इनेबल इंडिया तक। एंड बिलीव मी, जब मैं पहली बार इनेबल इंडिया जा रहा था और उस समय जो है मुझे अगारा, यहाँ पे स्टेशन पड़ता है, बस स्टॉप पड़ता है, तो अगारा मुझे उतरना था, और मैं उस बार फर्स्ट टाइम मैं अकेले जा रहा था, और मुझे वही लगा कि जो है मैं कहीं गलत जगह उतर गया तो क्या। और मैंने कम से कम 10 लोगों से पूछा कि अगारा कहाँ है और कब आएगा। और मुझे आज भी याद है कि वो दिन काफी कठिन हुआ करते थे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वो काम कर रहा था। बट द लेसन इज, आपको वो करना पड़ेगा, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। आपको, अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस जगह से बाहर निकल के ऐसी जगह पे आना पड़ेगा जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आप सारी जो है एजुकेशन कर लोगे, लेकिन मोमेंट आपके पास जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है, तब आप बेंगलोर जाके इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, और हो सकता है आपको 50 इंटरव्यू देने पड़े जो है जॉब के लिए। जरूरी नहीं है पहले इंटरव्यू में ही आपका हो जाए। मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे आईबीएम में सिलेक्शन के पहले,
तो फर्स्ट पार्ट वहां से स्टार्ट हुआ जब मैंने बेंगलोर आया। उसके बाद भी मैं 2 महीना इनेबल इंडिया, इट वाज लिटिल टफ टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम इनेबल इंडिया, एंड एवरी टाइम व्हेन आई कॉल दे जस्ट से दैट ओके वी विल गेट बैक टू यू, and this happened for 2 months. 2 months, like I was just calling them and they were like, I will not say they were ignoring me, but they were like, okay, we will get back to you. And after 2 months, suddenly a call came to me, and they said that yeah, you can come for the process, like हम पहले assess करेंगे, उसके बाद हम आगे का process बताएंगे. And the first time, like when I went to Enable India, and after that मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ अब आ गए हैं तो कुछ होगा. और फिर उन लोगों ने प्रॉब्लम्स पूछी कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है. तो मैंने बोला कि मुझे रात में चलने से सबसे ज्यादा डर लगता है. मुझे आदत नहीं है. तो उन्होंने मेरा टाइम ही रख दिया, 4 बजे शाम को तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और तुम 9 बजे रात को घर जाओगे. And that time my mother also came with me, and she was waiting eagerly in home that 9 o'clock he will come. And my brother, he knows that okay he can manage, and he used to laugh that okay somehow वो खो गया तो क्या करोगी तुम मम्मी. तो उस समय जो है उनका ये था कि अगर रात को कंपनी से आप बाहर निकलोगे तो कैसे घर पहुंचोगे. तो उनका ट्रेनिंग भी यही था. उन्हें कोई वैसे तो वो कंप्यूटर ट्रेनिंग और काफी कुछ और भी करवाते हैं, लेकिन मेरे लिए जो मेन ट्रेनिंग था वो था लाइफ स्किल, अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है. और दूसरा लाइफ स्किल के अलावा दूसरा पार्ट था डिसेबिलिटी अवेयरनेस. अपनी डिसेबिलिटी को कैसे छुपाना नहीं है, लोगों को बताना है. इसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ. जब बेंगलोर में मैं पूछता था कि बस ड्राइवर से तो वो सेंट जॉन्स जाएगी क्या, तो वो लोग बस सर हिला देते थे और मुझे नहीं समझ में आता था हाँ जाएगी कि नहीं जाएगी. तो पहली बार एक्सीलेंट बनी, बहुत अच्छा तुमने ये बोला. आई एम सॉरी आई एम कटिंग योर दिस थिंग इन बिटवीन, पर ये बाकी सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता है, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा. और सर ने बोला है चाहे लड़के हो चाहे लड़की, आपको अकेले जाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी अगर आप जॉब करना चाहते हो. वर्क फ्रॉम होम ही नहीं देंगे सब लोग आपको जी. और दूसरा, अपनी चीज को छुपाना नहीं है. अपने पेरेंट्स को भी इस चीज को बताओ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. सर ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बस कंडक्टर को अगर वो सर हिला के बोल रहा है तो उनको बताना पड़ेगा ना कि मुझे आपका सर नहीं दिखाई पड़ रहा, मतलब व्हाटएवर. एक्सीलेंट, प्लीज कंटिन्यू रजनीश. या तो वो मुझे लगता था कि मुझे शर्म आती थी ये बोलने में कि क्योंकि मैंने कभी भी मेरी स्कूलिंग मतलब मैं बोलूंगा साइटेड लोग बच्चों के बीच में हुई. कॉलेज में भी कोई ऐसा अंतर नहीं था. मैंने कभी किसी को, मतलब थे मेरे कॉलेज में जिन्हें पैरों में प्रॉब्लम हुआ करती थी और थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम्स वाले लड़के थे, लेकिन उन्हें देख के मुझे कभी लगा नहीं कि चलो जिंदगी में कुछ और टफ भी हो सकता है. तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मतलब मेरे अंदर ये नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है भी. मतलब मुझे लगता था कि चलो ठीक है ऐसा चल जाएगा. तो दे आस्क मी कि वो पहली बार था जब मैं रात को अकेले, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ चलने की आदत थी, उन्हीं के बीच में रहने की आदत थी. And though my elder brother was here and he was quite helpful in every aspect, but वो ट्रेनिंग का रिस्पेक्ट भी करता था. वो कभी मुझे रिसीव करने नहीं आया, कभी भी उसने जो है मुझे रिसीव करने नहीं आया. बस अगर उसका ऑफिस मैच कर जाता, क्योंकि हिज ऑफिस वाज इन एचएसआर एंड इनेबल इंडिया's ऑफिस वाज नियर टू कोरमंगला. So Agara was kind of junction point, and if his office timing matches with me, then he will pick up me as well. Otherwise, I have to manage the whole travel by myself. And every day, because अगर आप रात में चल रहे हो तो एक प्रॉब्लम है, घर कैसे आइडेंटिफाई करोगे. मेरा लो विजन था. मुझे आज भी याद है, मैं एक सैमसंग कंपनी का लोगो याद रखता था कि मुझे ये सैमसंग कंपनी का लोगो दिख गया, यानी मुझे उस जगह पे उतरना है. आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे. जब आप बाहर निकलोगे, जब आप मैं कहूंगा अपने
प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट से बाहर निकलोगे तो सब चीजें वैसी ही नहीं होंगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। आपको अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, आपको अपना तरीका बनाना होगा कि हाँ मुझे सेफ्टी के साथ चलना है। सेफ्टी मैटर्स, क्योंकि जिस दिन आपने कुछ सेफ्टी में कंसर्न लिया उस दिन आपके मम्मी पापा दोबारा घर आपको बुला लेंगे। तो वो एक सच्चाई है जो मैं आगे कवर करूंगा। तो at that time my first fear was traveling at night, and see these are before job, like these are something which you have to overcome before you get into a job, right? And first thing which I overcome was around like fear around traveling at night। मुझे डर लगता था रात को चलने में, और अकेले तो खासकर। तो ये मेरा फर्स्ट इंस्टेंस था जब मैं अकेले आना जाना सीखा। मैं बस बदल के आया जाया करता था, 2 बस बदलता था, फिर 1 किलोमीटर पैदल चलता था, तब भी मैं कंफर्टेबल हो गया था उस पॉइंट पे। उसके बाद जो है उन ट्रेनिंग पूरी हुई, फिर मैं घर आ गया। मुझे लगा कि चलो अब शायद जॉब ऑफर आएगा एंड वहीं कुछ इंटरव्यू देने को मिलेगा। फर्स्ट कॉल आई कैन रिमेम्बर वाज फ्रॉम थॉमसन राइटर्स। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, बस मुझे बोला प्रिपेयर होने के लिए। एंड आफ्टर दैट लाइक there were some people from other companies that were helping me to prepare for the interview. So this is what you get when you join any consultancy or any NGO, that you get some expertise which you cannot get easily over internet. So always I will say like whenever you are searching for any job or even any thing, first thing you can look over like if there are some consultancy, some NGOs which are doing a prominent job, because they have their expertise and they wanted to share their expertise with you guys. It's not like they want to hide anything. तो वहां पे मुझे कुछ लोगों से इंटरव्यू देने का मौका मिला। वो काफी बड़े लोग थे, मतलब काफी प्रोमिनेंट पोजीशन में थे। तो दैट टाइम मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया। एंड इन जुलाई लाइक I get a call from Enable India itself that you can join as a software engineer. There was a product called iTool, which was meant for like training visually impaired for computers. Like it used to give some questions and you can answer, and it will verify that your answers are correct. So that was a tool being developed from Enable India. There was a person called Rubin who was sitting in Malaysia, और वहां से वो इस टूल को डेवलप करते थे। एंड दे नीड अ पर्सन इन इंडिया हु कैन असिस्ट देम, हु कैन हेल्प देम कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो एंड इनेबल्ड इंडिया जॉब आई विल से लाइक वो लोग टाइम के काफी पक्के थे। आप 9 बजे मतलब 9 बजे, 9:10 नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपका 6 बजे है तो 6 बजे के पहले वो लोग छोड़ते भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई रिलीफ है कि डिसेबिलिटी में है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। एंड आई कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 8 months देयर। and after that I just talked that I was interested in corporate job, and I frankly talk जो है मैंने शांति मैम और दीपेश सर से बात की उस पे कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब में ही इंटरेस्ट है। So, and they asked to join their training program, and that was a turning point for me when I joined Enable India training program. I was not interested at all because I was having a strong feeling that I know computers, I know like English, तो मैं इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन ही क्यों करूं, क्या ये लोग मुझे सिखा देंगे। तो और वो लोग मुझे जाने नहीं देना चाहते थे बिना ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किए। तो और मैं उनके यहाँ जाना नहीं चाहता था। तो उन्होंने, माय मैनेजर एट दैट टाइम जॉर्ज वाज माय मैनेजर, उन्होंने बोला कि तुम छोड़ दो, तुम अपने भैया को बुलाओ। और उन्होंने भैया को जो है बुला के फिर उन्हें जो है भैया को कन्विंस कर लिया। और भैया की बात काटना मेरे लिए आसान नहीं होता था, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और फिर मैंने ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम ज्वाइन किया। And it was not just a computer training. I realized after when I have completed the training, it was all about accepting your disability, how and different aspects. At that time, I went to LHS.
पहली बार मैंने जो है उस टाइम पहली बार मैंने रेज्यूमे जो है कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग थी। एलएचएस जो कि वन ऑफ द लीडिंग कंसल्टेंसी है फॉर जॉब सीकर्स, मतलब जो है जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज है एलएचएस करके। वहाँ के एचआर आपको गाइड कर रहे थे कि हमें हम जब कोई भी रेज्यूमे देखते हैं तो हम उस रेज्यूमे में क्या पहले देखते हैं। उन्होंने टेम्पलेट समझाया कि कैसे आपको रेज्यूमे लिखना है, क्यों क्यों आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये सब मैटर करती हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। तो वहाँ फर्स्ट पार्ट मैंने ये सीखा कि आपको जॉब पाने के लिए एक अच्छा रेज्यूमे सबसे पहले चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, चलिए गवर्नमेंट में आप एग्जाम क्वालिफाई किए, एक आध इंटरव्यू दिए, आप एडमिट कर लोगे, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो तो फर्स्ट थिंग जो आता है वो है रेज्यूमे। तो ऑल एंड डोंट स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम एनी यूट्यूब वीडियो और समथिंग, यू हैव आप वहां पे जानो कि कैसे बेटर रेज्यूमे बनाना है, और इंटरनेट पे सर्च करो अपने मार्क्स को कैसे हाईलाइट, अपनी अचीवमेंट्स को कैसे हाईलाइट करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे हाईलाइट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया बीए ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और ये जब आप प्रोजेक्ट वहां पे लिखते हो तो इंटरव्यूअर को ये लगता है ही इज एन एक्टिव गाय, मतलब ये कुछ कर रहा है काम के अलावा भी, अपने पढ़ाई के अलावा भी। तो वहां पे हमने रेज्यूमे स्टार्ट किया एंड पैरेलली हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। एंड आफ्टर ट्रेनिंग लाइक वी वर गेटिंग opportunities की my first interview was in SAP Labs। SAP Labs एक कंपनी है जो कि सिस्टम एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, बेसिकली अगर कोई भी कंपनी को सॉफ्टवेयर चाहिए उसके ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए तो SAP Labs सॉफ्टवेयर बनाती है। तो and I cleared first round and after that second round it didn't went well, and after that सेकेंड इंटरव्यू मेरा था कारगिल सॉल्यूशंस में, जो वहाँ पे कुछ बड़ा इंटरव्यू तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो मेरे साथ एक और लड़की थी, वो शी वाज 7 years of experience, she lost her sight later, like she was working in HP as a software tester, and after like 7 years after working she started losing her sight। तो वो भी घर से ही निकल के आई थी, उसने भी 2 साल झाड़ू पोछा और वो सब में अपना समय बिताया। उसके बाद उसे इनेबल इंडिया के बारे में पता चला और वो वहां से अपने घर से उठ के यहाँ चली आई कि चलो मैं कुछ करूंगी। तो एंड शी गॉट सेलेक्टेड इन एट कारगिल एंड माय थर्ड इंटरव्यू वाज इन IBM। तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो टिल दैट पॉइंट वहां से मेरे जो है जॉब कैरियर जर्नी स्टार्ट हुई IBM में। एंड कोई भी एक्स्ट्रा आपको जो है सुविधा वहां पे भी नहीं मिलती है, बट IBM एज अ कंपनी आई विल एडमायर बिकॉज दे डू कंसिडर एक्सेसिबिलिटी। वो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको लगता है एक्सेसिबिलिटी एक प्रॉब्लम है, IBM आप कंपनी जब जाओगे तो वहां पे जो ग्राउंड पे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसको क्या कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे एक मार्किंग होती है फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कि वो टॉयलेट जाना है या फिर लिफ्ट में जाना है, हर जगह ब्रेल का यूज करते हैं। और उन्होंने इन्वायरमेंट अपना ऐसा बना रखा है कि एक व्हील चेयर यूजर भी पूरे IBM के 8 फ्लोर बिना किसी के मदद के घूम सकते हैं या फिर किसी भी फ्लोर में चले जा सकते हैं। उनका ये कहना है कि हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, कभी कोई मदद नहीं चाहिए होनी चाहिए, ठीक है। तो और एज लाइक मैं बोलूंगा कि जो है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वो काफी ट्राई करते हैं कि अपने सॉल्यूशंस जो वो खुद भी दें एक्सेसिबल हो और जो अदर कंपनीज से लेते हैं वो भी एक्सेसिबल हो। तो देयर इट ऑल स्टार्टेड। जब मैंने स्टार्ट किया इनिशियल डेज मेरे कोई टफ नहीं थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई। विद इन अ मंथ मैंने अडॉप्ट कर लिया कंपनी के कल्चर को, मेरे अच्छे दोस्त बन गए जिनके साथ मैं लंच पे जाता था, फिर मुझे वही सब मिल गया जो मुझे कॉलेज में और स्कूल में मिला करता था। टिल नाउ मेरा आज भी मेरे अच्छे दोस्त हैं
जिनके साथ मैं घूमता हूँ, कहीं भी जाना होता है मैं इंजॉय करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ मुझे कभी रियलाइज नहीं होता कंपनी में कि मैं जो है प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, वर्क प्रेशर, कई लोग बोलते हैं वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मुझे कभी नहीं लगा कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी नॉमिनल प्रेशर होता है, आपको अपने काम को बस प्लान करना होता है। तो दैट इज एन ओवरऑल जर्नी, कैसे मैंने जॉब पाया। अब मेरे पास बस एक या दो ही पॉइंट है जो कि मैंने सीखा फ्रॉम 2012 टू 2024। पहला है ब्रेकिंग द बैरियर। आपको अपने घर से निकलना होगा। अगर आप सोचो कि मैं घर में बैठा रहूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, नहीं होगा ऐसा। मुझे भी ऐसा ही लगता था 2012 में कि एग्जाम दूंगा, हो जाएगा, निकल जाऊंगा। मैं सेल्फ स्टडी करने पे ही विश्वास रखता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80% आपको घर से बाहर निकलना है। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा कि आपको ऐसी जगह पे होना पड़ेगा जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम रीवा, मध्य प्रदेश। तो अगर मैं सोचूं रीवा में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब मिल जाएगा या फिर कुछ भी जॉब मिल जाएगा, बहुत ही कठिन है, क्योंकि एमपी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफी, मैं बोलूंगा, आज भी पीछे है कंपेयर टू यूपी ऑल्सो। एमपी इज नॉट दैट ग्रेट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अगर आप गांव में हो या फिर किसी छोटे शहर में हो, तो आपको समहाउ किसी बड़े शहर की तरफ निकलना पड़ेगा जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। सेकंड, थर्ड पार्ट है, अगर आप कोई कंसल्टेंसी या कोई कोर्सेज ज्वाइन करते हो जहाँ जहाँ पे आपको सिखाया जाए। फॉर एग्जांपल, हम लोग लिंक्डइन गए थे जब मैं इनिशियल फेज पे था जॉब सर्च के, तो हम लोग लिंक्डइन आप कंपनी घूमने गए थे। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने इनेबल इंडिया ज्वाइन किया। अगर मैं चाहूँ कि मैं लिंक्डइन घूम लूँ ऐसे ही, तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ टिपिकल एडवांटेज का। शार्क टैंक में वो बंदा आया था, उसने वो भी वही काम करता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इस फील्ड में स्टार्टअप्स खोल रहे हैं और मतलब कई बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, आपको ग्रेजुएशन स्किल लेवल पे ध्यान देना। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप एक पॉइंट अपने आप को लेस कर रहे हो। मतलब आप ये सोचो, मैंने डिसेबिलिटी के कारण, कई लोग मुझे बोलते हैं कि प्रॉब्लम इतनी थी कि पढ़ नहीं पाया, लेकिन यही बात है कि ये प्रॉब्लम कोई समझेगा नहीं। मतलब बहुत लोग, एपीजे कलाम का स्टोरी ले लीजिए, तो उनके पास भी 50 प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो साइंटिस्ट बने, राइट। तो अगर आप ये बहाना मार रहे हो कि गरीबी थी या फिर मजबूरी थी इसलिए ग्रेजुएशन नहीं हो पाया और छोड़ना पड़ा बीच में, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी जॉब मैं बोलूंगा इसीलिए लगी क्योंकि मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। अगर मैं ये नहीं होता तो मैं आज कॉल सेंटर में कहीं पे जो है जॉब करता, या फिर कोई बहुत ही वैसा नॉमिनल काम ही मुझे मिलता। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ा नौकरी मिल जाएगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, प्लस आपको कंप्यूटर्स मस्ट है। इंग्लिश मैं कहूँगा काफी, अगर आप बेंगलोर साइड पे हो, मे बी इनफैक्ट नोएडा या दिल्ली कहीं भी हो, इंग्लिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल पे डील करती हैं, वो लोग फॉरेन पे बिजनेस करती हैं। तो इंग्लिश और कंप्यूटर मस्ट है कि आपको आना ही आना चाहिए और काफी अच्छा आना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, तो आप वहीं से स्टार्ट कर दो इंग्लिश सीखना। आप मेरी तरह वेट मत करो ग्रेजुएशन पूरा होने का। आप वहीं से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस लेना स्टार्ट कर दो। जैसे अभी हमने समर कैंप मैम ने ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत एक्टिव पार्ट है। आप आए यहाँ पे, काफी कुछ जान के जाओगे, राइट। तो वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपने स्किल सेट पे ध्यान दो और अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करने में ध्यान दो। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने सीखे, और भी हो सकते हैं, लेकिन इतने पॉइंट्स मुझे लगता है मेरे थे जो कि काम किए, और मैंने ये जॉब आज भी मैं कर रहा हूँ। That's wonderful, Rajneesh. In fact,
टेकअवेज कुछ जो मुझे लगे, आई वुड लाइक टू शेयर दैट ऑल्सो. एक तो मुझे समझ नहीं आया कि ब्रेकिंग बैरियर्स, जैसे रजनीश ने बोला, सो आइडेंटिफाई योर फियर्स कि आपके फियर्स क्या हैं, और उसके बाद आपको ये काम करना है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ, अपना पाथ बनाना है उन फियर्स को ओवरकम करने के लिए, बिकॉज वो फियर्स एक्चुअली आपके बैरियर्स हैं. द सेकेंड थिंग विच आई अंडरस्टूड वाज द अडेप्टेबिलिटी. So when you have something in your mind, you should be willing to adapt to the organization for which you want to work, and you have to relocate. You have to do various things. मतलब अपने आप को adapt करना भी आपको आना चाहिए. Third is that you have to acquire right skills. तो आपको जब पता है कि आपने ये अचीव करना है, तो उसके लिए स्किल्स लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है. जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सब आप सीखो. सीखने से कभी भी पीछे मत हटो. फोर्थ थिंग इज गेट हेल्प. यू शुड बी रेडी टू गेट हेल्प. शाय नहीं होना है. जहां से भी आपको हेल्प मिले, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतना कुछ है अवेलेबल हमारे पास, सो गेट हेल्प फ्रॉम देम. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस. व्हेन यू आर डिसेबल्ड, accept it that you are disabled and show it to the world, and also show what you can do and what you cannot do. That is very important. So what you can do is something which is going to be in your strengths, and identify that as something that you cannot do. Okay, fine, and let the world know about it and let them change for you. So self acceptance is also very important. So this is what I understood. Thank you, Rajneesh. That was wonderful. Yeah. Ma'am, Thanks, Rajneesh, and thanks, Jasdeep, for summing it up so beautifully. Acha, now I think we can we can take some questions. और जसदीप, ये रजनीश, आपने ये अपना इंजीनियरिंग का वो प्रोसेस बताया, आपने अपना जॉब का प्रोसेस बताया. जो जब आपने हमारे साथ में जावा का वो करवाया था, तो what had impressed me a lot was your you were very punctual about the time, and you were very particular that people should take it seriously. और तब आई रिमेम्बर योर वर्ड्स कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करोगे और अगर आप सोचो कि मतलब, तो आपको आई लाइक यू टू डिस्कस दिस विद द स्टूडेंट्स कि सही प्रोफेशनलिज्म के क्या क्या मतलब चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन दे आर in case they are aiming to join any big company or name. Yeah, sure, ma'am. तो जैसा कि मैम ने कहा, फर्स्ट पार्ट होता है कि आप जब भी जॉब कर रहे हो ना, मैं कहूँगा आईबीएम में टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको 11 बजे या 10 बजे, वो लोग कभी नहीं बोलते कि आप 10 बजे आओ तो 10:10 नहीं होना चाहिए. ये इनेबल इंडिया में इम्पोर्टेंट था, लेकिन कंपनीज हैं जहाँ पे आपको स्वाइप करना पड़ता है कार्ड. तो ये आपके हैबिट में नहीं होना चाहिए कि मैं आज भी आईबीएम जो है 9:30 बजे अपना नाश्ता करके 9:30 बजे मैं एंट्री करता हूँ. और अभी तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज़्यादा है, तो मैं 4 बजे वापस आता हूँ. ठीक है, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को चेंज नहीं किया. मैंने जब से स्टार्ट किया है, आईबीएम प्रोवाइड्स कैब एट डिफरेंट टाइमिंग्स. ठीक है, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ का बेनिफिट नहीं लिया कि मैं चलो 12 बजे जाता हूँ या 12:30 जाता हूँ. उसका एक जो मेजर एडवांटेज मिलता है, पहला तो गुड मॉर्निंग होता है मेरा इस समय जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो हम लोग कुछ ही लोग होते हैं, जब वो आते हैं तो वो गुड मॉर्निंग कहते हुए सबको निकलते हैं. तो वो टाइम रहता है कि जब मैं भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता हूँ. ठीक है, तो एंड डोंट थिंक इट दीज थिंग्स आर ऑब्जर्व. पीपल आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितने पंक्चुअल हो, काम के लिए आपका डेडिकेशन क्या है. आप 12 बजे आते हो, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन द मोमेंट अगर उन्हें आप में कोई गलतियां नजर आ गई तो उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे. सेकेंड पार्ट आता है ड्रेस वेल. हमें मोस्टली अगर आप एचआर के लिए, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप एचआर के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप इंजीनियरिंग के लिए, जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपकी हैबिट एक दिन में नहीं आएगा कि आप अचानक से अच्छे कपड़े पहनने लगोगे. ऐसा
इंटरव्यू कभी भी आ सकता है और वो टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो है मुझे हमेशा मेरी हैबिट में ही होना चाहिए कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। मुझे पता है कई बार हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि एक दो सेट हमारे पास ऐसे हों जो कि अगर लड़कियां हैं तो आप अपने बाल बाल बनाइए। आप कोई कोई बुराई नहीं है अगर आप स्मार्ट लगते हो, आप अच्छे लगते हो, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। कोई कोई जो है इसको कोई भी कमेंट करे कोई मतलब नहीं। आप अच्छे इनेबल इंडिया में हमें जब हम स्टार्ट करते थे तो हमारे ड्रेस पे भी वो लोग टोक दिया करते थे, जो हम लोग पहन के आया करते थे वहां भी उन्होंने वहां से मैंने ये चीज सीखा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सारे पॉइंट। थर्ड पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जब जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हो तो पहला पार्ट है आपको ऐसे मन में भी ये था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट वहां पे ये होता है कि आप लोगों के साथ कैसे मिंगल करते हो। आपके दोस्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप काम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आ, आप सोचोगे कि मैं 8 घंटे काम कर लूं, ऐसा नहीं होता। काम हमेशा 4 ही 5 घंटे का होता है, 2 3 घंटे तो वैसे ही एंजॉय होते हैं। लेकिन सब लोग टी के लिए जाएंगे, अगर वो आपको नहीं बुला रहे हैं तो तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के साथ जो है बात करना, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अ, आप अपने बारे में उनको समझाइए, उनके साथ बैठिए। कहीं ना कहीं वो लोग भी कीन है आपको समझने के लिए। कोई ना कोई आज भी मुझे रोड क्रॉस करने में शायद आज भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज भी मैं अपने दोस्तों के उन्हें पता है कि जब रोड क्रॉस करना है तो फोरमोस्ट पॉइंट है कि आप थोड़ा लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, ठीक है, लोगों के साथ कैसे उठना बैठना करते हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है जो कॉर्पोरेट कल्चर में इम्पोर्टेंट है कि आपको कब क्या बात करनी है। आप कम बोलो, इफेक्टिव बोलो, अच्छा रहता है। क्योंकि आप वहाँ सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी या लोगों के बीच में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते कि देखो मैं गरीब था, मेरे पास इतने कम पैसे थे, मैं यहाँ आ गया। आपको वहाँ लोगों के साथ खुश रहना है एंड कोशिश करनी है कि पॉइंट टू पॉइंट। कॉर्पोरेट कल्चर इज डिफरेंट, वहाँ पे आप ज्यादातर अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, अपने जो है सर्विसेज के बारे में बात करते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट में वो वो मुझे बोला कि जो इंस्टॉल करना है वो कर लो। तो अगर और मुझे उसके पहले लग रहा था कि कॉर्पोरेट है, मतलब सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, मतलब नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में बताइए। अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टाइम व्हेन यू एंटर अ कंपनी आपको टॉयलेट नहीं पता होगा और आप सोचोगे कि यार ना ही जाता हूँ, मतलब आपको लगेगा कि किसी से नहीं बोलूंगा तो चलेगा। लेकिन क्या बिना टॉयलेट के आप कंपनी में रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो ऐसी ऐसे पॉइंट होते हैं। कई बार आपकी लेडी आपके आप लड़का जाएगा और वहां पे पता चला 5 लड़कियां ही हैं, तो आपको आपको शर्म आएगी कि मैं किस लड़की से जो है कैसे बोलूं कि मुझे टॉयलेट का रास्ता बता दो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी सामने वाला भी समझ रहा है, देयर इज अ वे।
रखना है कि वो भी आपके साथ कंफर्टेबली जो है पर्सन चल सके। तो ये सारे पॉइंट मैं कहूँगा हमें सिखाया गया जब हम इनेबल इंडिया की ट्रेनिंग में थे। तो एज पार्ट ऑफ लाइक कॉर्पोरेट कल्चर ये सब हमारे अंदर पहले से था। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जब मैंने IBM ज्वाइन किया। लेकिन अगर कोई लाइफ स्किल्स और डिसेबिलिटी अवेयरनेस इसके कोर्सेज कोई प्रोवाइड करता है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको जरूर करना चाहिए। Great, very nice. So what he added was that you have to be always presentable. So you should dress smartly and professionally. And the second thing is that you should learn effective communication. So कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, ये सभी आपको सीखना है. So this is also a skill. तो very nice. बहुत अच्छा रजनीश आपने pointers दिए. Thank you. Yeah. वेरी गुड रजनीश। अभी 2 क्वेश्चंस हैं। अनिरुद्ध, आशुतोष, Jasdeep, can you ask them? I'll just check them once. And Yuvraj? Shall I start with Yuvraj Singh ka question? Sir, I have arts in 12th. Can I do BCA after 12th? Yes, you can do. मतलब कोई 12th में जो है BCA बस नहीं, उसके पास आर्ट्स थी 12th में। युवराज, वैसे ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हो रूल वहां के मतलब चेंज होते हैं। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आप वहां पे पता करो, वो चीज ज्यादा वो होगी। पर जैसे रजनीश सर ने कहा कि हाँ पॉसिबल है, कई कॉलेज अलाउ करते हैं, हो सकता है कोई कॉलेज ना अलाउ करता हो। अच्छा, अनिरुद्ध, whenever I complete my graduation, when I complete my graduation in BCA, what job opportunities are available for an ML engineer? कोई कंप्यूटर And which companies offer these jobs? हर एक कंपनी MCA और BCA को लेती है अगर IT सर्विसेज पे है। तो जनरली अगर आप देखो कि वो लोग का कंप्यूटर साइंस एक प्रेफरेंस होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप BCA कर रहे हो। लेकिन हाँ, कोशिश आपको ये करनी है कि अच्छे परसेंटेज के साथ करो। ओके, नहीं अनिरुद्ध का आपने क्वेश्चन आंसर कर दिया? अनिरुद्ध का क्वेश्चन ओके, आशुतोष सिंगल। अच्छा हाँ, both the questions were on BCA, I didn't realize. Could you please tell little bit about IBM company and sorry. He's saying And that does it have accessibility answer desk, sir? yeah, I was not able to understand what he's trying to say. Actually, I think Rajneesh spoke of accessibility in. हाँ, IBM में है, because आशुतोष is accessibility activist, तो उसको शायद वो पूछना था। अच्छा, आसित महापात्रा, sir, which screen reader is available in corporate sector, JAWS or NVDA? Both are available, but if you go for a banking sector, they generally don't allow NVDA because NVDA is an open source, right? And वो लोग JAWS को प्रायोरिटी देते हैं ओवर NVDA। मतलब उनके सर्वर्स वगैरह पे ही वो मैसेज आने लगता है अगर ओपन सोर्स इंस्टॉल करना है तो ये रेस्ट्रिक्शन मोस्टली बैंकिंग सेक्टर पे है, जैसे JP Morgan हो गया।
Not in on nationalized bank. हाँ मतलब SBI वगैरह में तो इन जनरल SBI वगैरह अलाउ करते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें जो है कंप्यूटर के एकदम फ्रंट एंड पे डील करना पड़ता है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, जैसे जेपी मॉर्गन या मॉर्गन स्टैनली टाइप की कंपनीज आप ज्वाइन करोगे, तो वहां पे क्या है, उनका जो बैंकिंग का सर्वर है वो वहां आपके कंप्यूटर से एक्सेस हो पाएगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी ओपन सोर्स से वायरस उनके सर्वर पे जाए। ओके। राजकुमार, बिल्स कोर्स करना चाहता हूँ मैं, जॉब रहती है क्या? राजकुमार, इट इज नॉट क्लियर, आपने जो बिल्स लिखा है उसको आप दोबारा टाइप करिए, शायद कुछ टाइपिंग एरर है। मीनाक्षी, कैन आई गिव दिस आंसर? आई रियली डोंट नो अबाउट, आप ग्रुप में मीनाक्षी आंसर दे सकते हो जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते। अनिरुद्ध ने दोबारा लिखा है एमएल इंजीनियरिंग, आई थिंक he mentioned. What jobs are available for ML engineering? तो ML इंजीनियरिंग काफी बड़ा फील्ड है, मशीन लर्निंग। तो इसमें मैक्सिमम जो है एक होता है, हर एक जॉब पे कई फेसेस होते हैं। एक होता है R&D, जो कि अगर आप चैट जीपीटी का जीपीटी मॉडल देखोगे, तो जो बेस मॉडल होता है वो R&D होता है। तो वहां पे आपको जो है काफी बड़ी टीम बैठेगी, ठीक है। फिर होता है कि उस बेस मॉडल का यूज करके कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट टीम बैठती है। फिर होता है मॉडल को टेस्ट करना, ठीक है, मतलब ML ही ML को टेस्ट भी करेगा, राइट। अगर आप मशीन लर्निंग का मॉडल लिख रहे हो तो वही मॉडल आपको टेस्टिंग, तो वहां टेस्टिंग जॉब्स होती हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से मेंटेनेंस और कई तरीके के जॉब होता है। ML कुछ नया नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ये भी एक फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ही है, जहाँ पे आप कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स का यूज करके जो है प्रोग्राम को लर्निंग करना सिखाते हो। तो सेम टाइप की जॉब्स हैं। अब यहाँ पे आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हो? अगर आप R&D पे जाना चाहते हो तो आपको मोस्टली वो लोग उस फील्ड में आपको PhD वगैरह प्रिफर्ड चीजें होंगी, जहाँ पर आप PhD कर लो। अगर आप डेवलपमेंट या टेस्टिंग में जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि इंजीनियरिंग की तरफ रुख करना होगा, कि आप कंप्यूटर साइंस से ही इंजीनियरिंग करो, मैकेनिकल या केमिकल टाइप की ब्रांच मत लो, क्योंकि वो एक प्रिफर्ड उनका क्राइटेरिया होता है। एंड उसके बाद फिर लास्ट फेज होता है कि आप एक लास्ट सॉल्यूशन पे वर्क करते हो, तो वो नॉर्मल BCA MCA कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका फाइनेंस का कोई प्रोडक्ट है जो कि ML यूज कर रहा है, तो वहां पे बस आप ML की API एक्सपोज करोगे और वो जो है यूज करेगा फाइनली, तो वहां पे आपका MCA BCA हो सकता है। Thank you, Rajneesh. Janvi is asking what should be the starting point for the job seeking? Resume. Okay. Okay, Anirudh, I think now your question has been answered again. Good morning, sir. Nihal, which job is beneficial for us? ये आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं। I was waiting for you answer. जहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं वो बेनिफिशियल है। बहुत सारे I think I'd like to say something about it. कौन सी जॉब मेरे लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल सही बोला रजनीश ने कि आप खुद डिसाइड करोगे। उसके लिए स्टेप आप ऐसे कर सकते हो, ले सकते हो कि फर्स्ट राइट डाउन व्हाट यू आर गुड एट। आप लिस्ट बना लो व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू वांट टू डू। तो वो आपको उसके बाद आप देखो कि इसको मोनेटाइज कर सकते हैं क्या, जो भी आपने लिखा कि आई एम गुड एट दिस 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 दिस, कैन आई मोनेटाइज इट, और व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, and then you have to see what you can monetize. So this is how you can decide your career. Good, thanks. मोहम्मद जाकिर खान, मैं BCA करने के लिए क्या चाहिए? 12th pass? 12th पास इज मस्ट, और प्रेफरेबली अगर आप जो है मैथ या फिर मैथ साइंस बैकग्राउंड से हो तो BCA करना थोड़ा आसान हो जाता है।
कॉमर्स भी चलता है, अगर आप 11th-12th कॉमर्स से किए हो तो भी आप BCA कर सकते हो। वैसा वो रिक्वायरमेंट कोई नहीं देते, उनका मेन रिक्वायरमेंट है 12th पास। Okay, next is Ribbonlin. Is it possible to get into any profession in the cities without the reference of any organization? ऑलवेज इट्स पॉसिबल। हाँ, जो है अगर आप आजकल अगर आप देखोगे तो कई कंपनीज इंडिविजुअली रीच आउट करती हैं, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट ही आता है। जैसे एक्सेंचर का है, तो एक्सेंचर के HR होते हैं, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो सीट ही फिक्स कर देते हैं कि ये PWD हायरिंग के लिए सीट है। तो अगर आप रेज्यूमे अपडेट करते हो नौकरी लिंक्डइन और इन सब में, तो कंपैरेटिवली अगर आप कॉल आता है तो आसान हो जाएगा कि डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। बट इफ यू ऑप्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने जैसे बोला कि अटिपिकल एडवांटेज, तो थोड़ा प्रोसेस उनका भी पोर्टल है जहाँ पे आप जॉब के लिए पोर्टल में पूरा रिज्यूमे और सब कुछ अपलोड कर सकते हो। उनका काम ही है इस तरीके के मतलब जो है डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना और जॉब दिलवाना, तो वहां से आपको कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाएगा। Thank you. निहाल शर्मा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। आई थिंक आपका शायद पहले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन होगा। गुड मॉर्निंग सर, दिस जॉब इज बेनिफिशियल फॉर अस, गवर्नमेंट और प्राइवेट? बेटे ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। रजनी सर ने आपको डिटेल में दोनों का बता दिया था कि आप अपने कीप योर ऑप्शंस ओपन। Mohammed Abbas, I have a question. Okay, write it down. Then Sarika, what should I do after 12th? I am studying arts. तो आर्ट्स के बाद मैं कहूँगा कि पहला है आपका चॉइस, कि मैं बोलूँगा आर्ट्स एक फील्ड है जो कि धीमे धीमे करके, मैं कहूँ जितना मैंने सुना है, धीमे धीमे करके उसका स्कोप कम होता जा रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि ग्रेजुएशन से आर्ट्स को वो लोग भी हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग आर्ट्स मतलब हैं दिल्ली में कई कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या फिर कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो या फिर कॉमर्स में इंटरेस्ट है, जहाँ पे कुछ प्राइवेट ओपनिंग्स भी हों। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि मुझे कलेक्टर बनना है तो मुझे BA आर्ट्स से करना ज़रूरी है। आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखो। एटलीस्ट अगर कल को आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो एटलीस्ट आप प्राइवेट की तरफ भी देख सको। और आर्ट्स काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देता है प्राइवेट जॉब के लिए। आई थिंक सारिका आपका मतलब ह्यूमैनिटीज से है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इनको यूज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में वो है, तो आप अपना इंटरेस्ट देखो। अगर नहीं आप मतलब इस लेवल पे जाके अगर आप नहीं स्विच ओवर करना चाहते हो तो है टीचिंग जॉब, साथ में आप B.Ed कर लीजिए, स्पेशल एजुकेटर बन जाओ, बहुत सारे स्कोप हैं। करेक्ट। Sandeep Rawat, ma'am, is there any English speaking course for low vision? If you said ma'am, that means you are asking me. Yes, NAB Merit is running English speaking course since last many years. So if you want, you can just join that thing. और उसमें विजन का कुछ लेना देना नहीं है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको जो सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़नी है वो करना है, वो उसमें भी आपके लिए बहुत अवेलेबल है। स्पोकन इंग्लिश के लिए ओनली थिंग विच यू नीड इज प्रैक्टिस। हेजिटेशन दूर करो, फ्रेंड से, फैमिली से, जहां भी बात करनी है इंग्लिश में बात करना शुरू करो। यू विल डेवलप अ गुड कमांड ओवर द इंग्लिश language. Okay, Drone sir, please discuss about subject combination to become a software developer. मोस्टली मैं बोलूँगा कि मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो भी मैं सॉफ्टवेयर में हूँ। मेरे भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, वो भी सॉफ्टवेयर में हैं। मेरा छोटा भाई बस जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर में गया है।
तो इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर में जाना कोई मतलब आसान होता है, या फिर बीसीए एमसीए अगर आप कर रहे हो तो उससे जाना भी थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है। अदर देन दैट मैं बोलूँगा कि जाना कठिन होता है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में हो तो आपको फिर उसी टाइप के डोमेन पे डील करना पड़ेगा। फार्मेसी अगर आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर फार्मेसी में भी है, तो उनके लिए फिर उस तरीके के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो या तो इंजीनियरिंग की तरफ आप देखो या तो बीसीए या एमसीए की तरफ। Good, thanks. Anirudh, I preferred the generative AI. ये उसका ऊपर से जो वो क्वेश्चन था उसी का कंटिन्यूएशन में है। तो जनरेटिव एआई एक बस फील्ड है, एआई काफी बड़ा है और जनरेटिव एआई बस एक फील्ड है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको एग्जैक्टली सिर्फ जनरेटिव एआई पे जो है काम करना है तो ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज और से आपको जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे और अचानक से वो आपको जनरेटिव एआई पे डाल देगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे जो कि कॉलेज आपको दिलवाने में हेल्प करेगा। उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जनरेटिव एआई का पाथ लेना है तो आपको कॉलेज में पहला प्रोजेक्ट करना होगा, फिर इंटर्नशिप में आपको जनरेटिव एआई, तो वो तरीका होगा कि आप जो है फाइनली जब आप काम भी करोगे तो वो जनरेटिव एआई के ऊपर होगा। इसका एग्जांपल मेरा छोटा भाई मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट है, वो जर्मनी में। तो वहाँ उसने स्टार्ट ही कॉलेज लेवल से किया था कि उसने डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए उसके प्रोजेक्ट्स भी सारे उसी डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में उसने इंजीनियरिंग एमटेक किया फ्रॉम धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। और उसके बाद फिर फाइनली उसने प्रोजेक्ट्स भी उसी में किए और इंटर्नशिप भी उसी में किया। जब उसने जॉब स्टार्ट किया तो वो डेटा साइंटिस्ट 1 बोलते हैं, तो लेवल 1 से स्टार्ट किया, आज वो सीनियर लेवल पे है। तो अगर आपको फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको कॉलेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत अच्छा डिटेल में आपने बताया। दामिनी, आई वांट टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम, व्हाट शुड आई डू? यू शुड स्टडी a lot of books. अब हमारा, बिकॉज रजनीश सर का फील्ड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर नैब मेरिट में हमने एक वेबिनार कंडक्ट किया था। साम्यक जैन, ही इज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हु हैड क्रैक्ड आईएएस, उन्होंने वहीं से एकेडमी से ही दिया था अपना वो। तो उनका यूट्यूब पे आपको हमारे उनका वो मिल जाएगा पूरा वेबिनार, यू कैन गो थ्रू दैट, बिकॉज आई थिंक उसमें उन्होंने काफी प्रोसेस बताया था कि हाउ ही वाज वेरी fond of reading books and everything, or he made it sound very simple. So Damini, you can do it. Murtaza Vani, sir, can you please give a road map for BCA? रोड मैप नहीं है बीसीए के लिए कुछ भी। आपको 12th करनी है और बीसीए में एडमिशन लेना है, और उसके बाद वो कॉलेज का पूरा जो सिस्टम है वो क्वालिफाई करना है। और उस फाइनली आपको ये बस ध्यान में रखना है कि जब आप बीसीए कर रहे हो तो आप बस इसलिए मत करो कि सब लोग कर रहे हैं, कंप्यूटर में ही जॉब है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि काफी सारी चीजें आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी विद इन 10th-12th। अगर आप पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर में आपको, क्योंकि मोमेंट आप कॉलेज में एंटर करोगे तो आपको बेसिक कंप्यूटर कोई नहीं सिखाएगा, राइट। वहां पे आपको प्रोग्रामिंग और काफी टूल्स से, आपको कंप्यूटर से बेसिकली प्यार हो जाना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीसीए करना चाहते हो, आपको कंप्यूटर अच्छा लगना चाहिए, राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि रोड मैप बस एक ही है कि आपको कंप्यूटर पसंद होना चाहिए। Good. Mohammed, you said that I have a question. Okay, we are waiting for your question. Sashi Kanta, how to invest money in share market? गुड क्वेश्चन। Okay. मैं करता हूँ इसलिए मैंने बोला। Very good, very good. मैं सारे काम ही ट्राई करता हूँ। तो
कोई मैं मैं बोलूंगा पहले कि वो वाली वार्निंग दे दूं जो पापा के पैसे हैं तो ध्यान से इन्वेस्ट करो, अपने हैं तो कर सकते 6:30 हो। पे वो बोलता है ना कि मनी इन्वेस्टमेंट इज योर ओन रिस्क, तो आप हाँ, नैब मेरा टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। तो मैं वही बोलूंगा, अगर पापा के पैसे हैं तो ध्यान से इन्वेस्ट करना, क्योंकि घर से बाहर निकालने के भी चांसेस बढ़े आएंगे। अपने हैं तो कर सकते हो। गुड गुड। हाँ, अब इनको एक टिप भी दे दीजिए आप। मतलब आई थिंक व्हाट शशिकांता इज ट्राइंग टू आस्क, इज इट एक्सेसिबल फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू? अपस्टॉक्स करके एक ऐप है, मैं वही यूज करता हूँ। तो मैं इनफैक्ट सभी को रिकमेंड करूंगा कि आपको फाइनेंसेस समझने चाहिए कि कैसे शेयर मार्केट बहुत ही बड़ा, मैं बोलूंगा जो जो, जो स्कैम 1992 उसमें दिखाया गया कि वो इतना बड़ा सागर है कि जहाँ सबकी प्यास बुझा सकता है पैसे की, ठीक है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले आप थोड़ा सा स्टार्ट पॉइंट पे आप ऐसे शेयर्स पे लगाओ जो कि थोड़े बड़ी कंपनीज के हैं। फॉर एग्जांपल टाटा पावर हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया। तो आप अपस्टॉक्स का ऐप ट्राई कर सकते हो। स्मॉल अमाउंट आप 1000 रुपीज या 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने पहला दिन एक ही चीज सीखा था, मैं खरीदना और बेचना सीखूं, बैंक अकाउंट से पैसा डीमैट पे डालना और वापस डीमैट से बैंक में डालना, ये मेरा पहला था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे Can you spell the name which you said? अपस्टॉक्स, UPSTOX, काफी सिंपल सा यूआई है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेसिबिलिटी का। Okay, thanks. मोहम्मद, आपने तीसरी बार ये बोला है कि आप क्वेश्चन टाइप कर दो और वो मैं रीड आउट कर दूंगी। राजकुमार ने पूछा है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जॉब रहती है क्या ब्लाइंड के लिए? हाँ, मैं उतना कह तो नहीं सकता क्योंकि मुझे फील्ड का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अगर मैं कुछ गूगल से सर्च करके बता पाऊं। सर प्लीज टॉक अबाउट, द्रोण ने बोला, सर प्लीज टॉक अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के कुछ नहीं है, मैंने बोला इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी मैकेनिकल से भी। मैं बोलूंगा कंप्यूटर साइंस बेटर होता है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर लो और उसके बाद या तो बीसीए एमसीए कर लो। वहाँ पे आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स बताए जाएंगे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ज़रूरी होते हैं। एक ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हो तो जावा, हमने एक कोर्स किया था जावा। तो जावा ही आज भी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है। सी पाइथन वगैरह भी होती हैं लेकिन उस एक्सटेंट पे नहीं होती जितने पे जावा यूज होती है। तो आप जावा लर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ा सकते हो, टूल्स बढ़ा सकते हो। Next is Ramya's question. I have done BSc in mathematics and I have low vision and want to be data analyst. Is there any opportunity for us in IBM? तो अपॉर्चुनिटी तो हमेशा ही रहती है आईबीएम में। मतलब आईबीएम ऐसी कंपनी है जो हर महीने ही 500,000 लोगों को हायर करती है। तो वहाँ पे आपको पोर्टल पे जाना है और एंड फाइनली मैं यही बोलूँगा कि आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहला है अटिपिकल एडवांटेज पे आप जाके अपना रेज्यूमे बनाओ और उन्हें अपलोड करो। दूसरा है नौकरी पोर्टल पे आप अपना रेज्यूमे अपलोड करो, अच्छे से करो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा डिटेल लिख के करो। तीसरा है लिंक्डइन पे। ये 3 जगह आपको एक्टिवली जो है अपना रेज्यूमे को अपलोड करना है और पूरी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। Good. Ashutosh wants to know, I want to know accessibility answer desk for users. That I think he wants to know in IBM.
तो एक्सेसिबिलिटी का कोई ऐसा खास इशू मैंने तो नहीं देखा अभी आईबीएम में, क्योंकि वो लोग अपना एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का एक टीम बैठता है आईबीएम में। रघु, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल नो, रघु जो कि एक्सेसिबिलिटी हेड है एशिया पैसिफिक का, तो वो एक टीम रन करता है जो कि आईबीएम के कोई भी सॉफ्टवेयर या सर्विसेज के लिए एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग होती है। कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सारे सॉफ्टवेयर में होते हैं, माइनर्स कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका आपको दे सकता है। और आईबीएम में एक डेडिकेटेड टीम भी है जहाँ पे आप अपना, एक चैनल है, स्लैक चैनल है, जहाँ पे आप अपना एक्सेसिबिलिटी कंसर्न रेज कर सकते हो या फिर किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो विद सिमिलर काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। दे हैव अ स्लैक चैनल। Asit wants to know, sir, can coding and programming be done by NVDA? Yes, it can be done. Ribanlin, is it necessary or is it appropriate to update our disability status in our resume? I will say yes. Yeah, better to update must. बिकॉज जब भी कोई रेज्यूमे आपका देखेगा तो अगर उसे कोई प्रॉब्लम है कि उसे नहीं हायरिंग करनी डिसेबिलिटी पे, तो वो फालतू के कॉल्स आपके पास नहीं आएंगे। मोहम्मद जानिद, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्कूल एज स्पोर्ट्स टीचर की जॉब मिल सकती है पर पार्सले ब्लाइंड को? ओके, तो स्पोर्ट्स मैं बोलूंगा कि डिपेंड करता है स्कूल कौन सी है। अगर स्कूल भी पर्टिकुलरली मेंट है, मैं प्रैक्टिकल बात बोलूंगा कि अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्कूल बनी हुई है तो ऑब्वियसली वो आपको स्पोर्ट, जैसे यहाँ पे SRMAB करके एक स्कूल है, तो वो पर्टिकुलरली केटर करती है विजुअली इम्पेयर्ड को, तो ऐसी स्कूल्स में तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कोई बाकी स्कूल जाते हो तो वहां पे फिर उनका क्राइटेरिया हो सकता है। Janvi, thank you so much. Really amazing session. Sarika, which course should I pursue in computer? सो कंप्यूटर में स्पेसिफिकली जो है काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे आजकल AI के ऊपर कोर्सेस हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्पेशली डिजाइन कोर्सेस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह के ऊपर। तो मैं बोलूँगा कि जो है सबसे इजी पार्ट होता है कि कंप्यूटर साइंस एज अ होल आप देखो, लेकिन जैसा अनिरुद्ध बोल रहा था उसे पर्टिकुलरली जनरेटिव AI में इंटरेस्ट है। तो अगर आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, और ज़्यादातर कंपनीज भी उसी पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आप AI को अडॉप्ट कर सकते हो कि मतलब आप AI पे ही फोकस करो। जाकिर खान इज आस्किंग, कोई ब्लाइंड के लिए बताइए कि हम BCA कौन सी कॉलेज में कर सकते हैं? मुझे कॉलेज एग्जैक्टली तो नहीं पता, मैसूर में एक अच्छा कॉलेज है जहाँ से मैंने कई लोगों को BCA, वो लोग मतलब पर्टिकुलरली आई थिंक वो कॉलेज डील करता है विजुअली इम्पेयर्ड से, और वहाँ से मैंने कई स्टूडेंट्स को जब मैं इनेबल इंडिया में था मिला भी था, और उनका नॉलेज जब मैंने चेक किया देखा कि काफ़ी अच्छा था, मतलब कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती थी, साफ समझ में आ रहा था। बाकी ऑल ओवर इंडिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैसूर में है। ओके, शबीर says कि डियर सर एंड मैम, आई वांट टू डू इंग्लिश। आप कुलदीप सर को कांटेक्ट कर लो, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन वो ऐड कर देंगे। Ishita, ma'am, sir, what job is good for someone who knows English and is learning Japanese? So basically ट्रांसलेटर्स की जॉब होती है, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी प्रोमिनेंट होता है कि प्लस अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो मैं एक फील्ड काफ़ी रिकमेंड करता हूँ कि आप HR की तरफ देखो। कई सारी मेरे फ्रेंड्स HR में हैं,
और उन्होंने काफी अच्छा वो लोग कर रहे हैं क्योंकि जॉब काफी एक्सेसिबल है। और दूसरा चीज है कि एप्पल में मेरा एक फ्रेंड है जो कि सीरी को टेस्ट करता है। तो वो इस तरीके के गूगल असिस्टेंट हो गया या एप्पल का सीरी हो गया, तो यहाँ पे काफी ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पे आपको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि ग्रामर को काफी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। मतलब जैसे नो है KNOW या नो है NO, दोनों में काफी अंतर है, राइट? तो लेकिन सीरी को समझाना कि कब KNOW वाला है कब NO वाला है, तो वहां पे ऐसा नहीं है सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर AI काम करता है, वहां पे एरर करेक्शन की एक टीम बैठती है जो कि एरर को जो है बताती है कि सीरी ने अब गलत आंसर दिया है या फिर उसने गलत समझा है। तो हैदराबाद में ऐसा पूरा एक टीम बैठता है जहाँ पे मेरा फ्रेंड भी काम करता है। तो अगर आपको 2-3 लैंग्वेज आती हैं तो वो भी एक अच्छा फील्ड है। अनिरुद्ध, आपने कुछ और क्वेश्चन भी पूछा है। यू सेंड मी अ मैसेज एंड आई गिव यू, आई मीन रजनीश, he had been a very good student of NAB Meerut, and I mean he had some specific queries, so I'll give him your number. Okay. Mohammed Abbas, I'm from Kashmir. I'm MA in history and 2 years diploma in draftsman civil engineering. I want to provide online job. Please give suggestions for me. I think आप लेना चाहते हैं online job. MA history, 2 years diploma in draftsman civil engineering. हाँ, तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का मुझे उतना तो आइडिया नहीं है कि पर्टिकुलरली विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि सिविल और मैकेनिकल को मैं एक ऐसी फील्ड मानता हूँ जहाँ पे काफ़ी कम स्कोप होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर या तो डिज़ाइनिंग का काम होता है या तो जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है या तो फाइनली प्लानिंग या फिर एरिया, मतलब जो साइट डेवलपमेंट वगैरह इंजीनियर होते हैं, जहाँ पे सारे जगह विजन का काफ़ी बड़ा रोल है। तो आप देखो कि मतलब किस फील्ड में कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर विजन लो विजन भी है तो मैं बोलूँगा डिजाइनिंग में आपको नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना प्रॉब्लम देखा है, मैं भी डिजाइनिंग किया हूँ कॉलेज में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव होता है कि आपको NVDA कोई हेल्प नहीं करेगा वहाँ पे, और जॉस वगैरह का कोई काम नहीं होगा और आप पूरे टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन से चिपके रहोगे, तो आपका वो लो विजन फाइनली क्या होगा कि ऑल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपने विजन को भी बचा के रखना है। वेरी गुड सजेशन। और आप MA हिस्ट्री को ज्यादा यूटिलाइज करिए अगर आप BEd वगैरह कुछ कर सकते हैं, वरना सर बार बार वो जो जॉब पोर्टल्स बता रहे हैं आप वहां पे ट्राई कर लो, आपको दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, MA हिस्ट्री एंड सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको जहां भी इजी मिल जाए आप वो कर लीजिए। अनिरुद्ध हैज डन 100+ प्रोजेक्ट, बट अनिरुद्ध आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू हिज नंबर, सो रिलैक्स। Sidra, what should I do after my graduation? I'm doing economics honors. बेटे वो रजनीश सर का फील्ड नहीं है, तो I really doubt. ललित मिश्रा, आप लोगों ने इसको बिल्कुल जॉब वो करियर काउंसलिंग वाला सेशन हमने शुरू किसी वो टॉपिक कुछ और था, बट आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड दिस थिंग. Lalit Mishra, I have been preparing for UPSC exam for last 3 years, sir. I'm 80% disabled. I have given my last 2 attempts. In one, I could not clear the prelims, and in the other, I could not clear the mains. What should I do? I'm worried. You need not worry, Lalit. वो तो help नहीं करेगा तुमको, और अभी आपके I think 1 या 2 अटेम्प्ट और होंगे अगर Anyway, रजनीश, तो मैं कहूंगा कि आप मेंस तक पहुंचे हो तो आप अपने अटेम्प्ट्स करो, क्योंकि आप काफी करीब हो, और
मैं बोलूंगा कि सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम को मत टारगेट करो, स्टेट हाँ। पीएससीज को भी टारगेट करना स्टार्ट करो, या फिर जो पीसीएस स्टेट वाला और ये पीसीएस वाला जो एग्जाम होता है स्लाइड्स। उसको भी टारगेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपैरेटिवली आपको जॉब, अच्छा बात है कि आप यूपीएससी कर लोगे, काफी अच्छी बात है, लेकिन जब हम जॉब को देखो तो अपने आप को कभी सीमित मत रखो। आप स्टेट के पीसीएस लेवल एग्जाम्स भी दो, और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं उनको भी ट्राई करो, क्योंकि फाइनली आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स या 5 अटेम्प्ट्स जो होते हैं आपको कहीं ना कहीं जॉब भी चाहिए, राइट? तो दायरा बढ़ाओ और एग्जाम देखो। आप मेंस तक पहुंचे हो, सर्टेनली थोड़े से पॉइंट से ही रह जा रहे होगे, उनको ट्राई करो। अगर कोचिंग कर सकते हो तो कई बार हम घर से बस प्रिपरेशन करते हैं और उस वजह से भी काफी अंतर पड़ता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोचिंग करो और जो है और भी एग्जाम लिखो। मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे। असित, आई थिंक तुमने पहले भी पूछा था, कैन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग बी डन यूजिंग एनवीडीए? यस, सॉफ्टवेयर कोई भी डेवलपमेंट जो होगा वो एट द एंड टाइप ही करना है। और डीबगिंग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड करके एक नया आईडी आया है। हमने जब जावा का सेशन लिया था तो वहां हमने उस आईडी को देखा था, तो काफी हद तक वो एक्सेसिबल है, डीबगिंग भी काफी आसान कर दिया है, तो आप उसको ट्राई करो विथ एनवीडीए। Lalit says, I have done ITI and CCC in computer. CCC नाइलेट वाला, डोएक वाला, आई थिंक आप उसकी बात कर रहे हैं, तब तो और भी तुम्हारा स्कोप बढ़ गया। अच्छा, अभी देखो सर का हमने टाइम आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया है, तो जो लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं उनका अभी मैं कोई और नया क्वेश्चन नहीं लूंगी। ओके। Ramya, I'm also from Bangalore. Is there any internship available in data analysis in IBM Bangalore? डेफिनेटली यस, मैं बोलूंगा कि इंटर्नशिप्स अवेलेबल रहती हैं। अभी कुछ इंटर्न्स हम लोगों को ज्वाइन किए हैं। आईबीएम एज अ कंपनी काफी बड़ी है, मैं बोलूंगा कि मैं तो बस उसका एक छोटे से पार्ट में काम करता हूँ। तो आईबीएम जॉब्स करके आप लिखो गूगल में, वहां पे आपको सारी जॉब्स दिख जाएंगी। और पर्टिकुलरली मैं आईबीएम नहीं रिकमेंड करूंगा कि बस आप आईबीएम के लिए डेटा एनालिसिस देखो, आपको इंटर्नशिप किसी भी कंपनी में मिलती है, आप जाके इंटर्नशिप करो। Sarik, okay, Shashikanta says SIP. I don't know, ये आई थिंक आपके किसी क्वेश्चन का पहले में कुछ कंटिन्यूएशन में होगा। Then I have written the name UPSTOX, जो शेयर मार्केट के लिए आपने पूछा था। ध्रुव ने पूछा है, सर थैंक्स, इज कोटलिन बेस्ट और नॉट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? कॉटलिन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होती है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है तो सर्वर साइड पे अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जावा, आप ये सोचो, एक पार्ट होता है ओपन सोर्स, यानी उसे कोई भी जाके एडिट कर सकता है, ठीक है। कंपनीज उसे मैनेज करती हैं, उसके एलटीएस वर्जन निकालती हैं, लेकिन जब आपके बैंकिंग का प्रोजेक्ट डेवलप करते हो आपको जावा या सी शार्प टाइप की लैंग्वेज चाहिए होती है, क्योंकि इनको मेंटेन करता है एक कंपनी। जावा का कोई भी वर्जन ऐसा नहीं आएगा कि जो ऑरेकल के बिना उसके आ जाएगा, यानी ऑरेकल मेंटेन करता है जावा को। तो अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तरफ इंटरेस्ट है तब आप कॉटलिन, जावा जैसी ही है सेम टू सेम, तो आप कॉटलिन की तरफ देख सकते हो। अच्छा, जाहिद खान हैज आई थिंक आंसर्ड। अब किसी ने ऊपर पूछा था स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए, तो उसके लिए जाहिद ने आंसर दिया है कि ब्लाइंड क्रिकेट एंड एथलीट मैन एंड वुमेन में भी करियर बना सकते हैं। आई एम कैप्टन चंडीगढ़ ब्लाइंड क्रिकेट टीम एंड नेशनल एथलीट। एक्सीलेंट जाहिद, बहुत आपने अच्छी बात बताई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, you are a national athlete and captain Chandigarh blind cricket team.
अगर जिसको भी कांटेक्ट करना था, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत ऊपर पहुंच गया है, तो थैंक्स। पर यही चीज रजनीश सर ने भी बताई थी कि आप स्पोर्ट्स टीचर, मतलब एक ब्लाइंड स्कूल और उसमें बनना आपके लिए आसान होगा, बट नॉट इन ए साइटेड वो, पर जाहिर बहुत अच्छे जॉब पर है वहां पर, तो वेरी गुड। शशिकांता, अनचेक्ड ETI एलोकेंस TTS 64 पर केली आएगा की भी। I'm sorry, I can't read this. Meenakshi send in group about the meet or share market and accessible app after meet. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप उसको कर लो, मतलब कॉपी कर लेना। सारिका विच, बिकॉज मैं उसको ऑफिशियली नहीं सजेस्ट करूंगी, I'm just playing safe. सारिका, और वो भी अगर आपके मतलब पापा के पैसे हैं जैसे कि सर ने कहा तो सारिका, which course should I study? Computer, please give me number। नहीं बेटे, ऐसे कोई आपको बिल्कुल कोर्स और वो नहीं सजेस्ट कर पाएंगे। मुझे कोडिंग सीखनी है तो कृपया आप मुझे कोडिंग के बारे में can you suggest some project we can complete in BCA and can I get your contact? तो प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिकली जो है ध्यान देना होता है, तो कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आप पर्टिकुलर NGO से ही ले सकते हो, जो कि वो लोग ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब कोई टूल जो है बनाना चाहता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे हमने जब जावा का कोर्स किया था तो हमने एक सिंपल सा टाइपिंग टूल बनाया था स्पेलिंग के लिए, जो कि स्पेलिंग चेकर टाइप का था। तो ऐसे टाइप के कोई भी बड़े टूल्स भी हो सकते हैं जो कि आपके कॉलेज वाला या फिर कोई NGO, कहीं से भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलते तो फिर मैं बता दूंगा, मेरे पास बहुत है। अनिल, आपने पूछा है कुछ कोडिंग के बारे में। हाँ, कोडिंग के कोर्सेज हमने नैब मेरठ में भी रन किए हैं, तो इट इज पॉसिबल। Ramya has thanked you, Rajneesh. Thank you for giving us such an inspiring and informative session, sir. अब बहुत ज्यादा ये जॉब रिलेटेड और कोर्स रिलेटेड स्पेसिफिक वो हो गए हैं। Front end is accessible for us in web developing? मैं कहूँगा it's accessible with the React and all, like, but I will not suggest to go for a front end. Instead, better it will be better because front end is commonly like user experience, right? And we will just look over like कि हम स्क्रीन रीडर से उसे समझेंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड बनाना सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जॉब मार्केट के लिए मैं बोलूंगा कि आप बैकएंड में सर्विसेज का डेवलपर बनिए, जो कि बैकएंड को हैंडल करना स्टार्ट करे। और बैकएंड फ्रंट एंड में बहुत ही कम टाइप की अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं ये मत सोचो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब इन जनरल भी फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए कोई खास बड़ा अपॉर्चुनिटी आजकल नहीं आता है, क्योंकि फाइनली जो है सारा कुछ रिएक्ट और फ्रेमवर्क ही हैंडल कर देता है फ्रंट एंड को। तो उनके बटन लिखो तो बटन बन जाती है, जिस जैसी बटन बनानी है। आप बूटस्ट्रैप को देखो, काफी हाईली मतलब कस्टमाइज्ड है। तो अब फ्रंट एंड उतना कठिन नहीं रह गया है जितना पहले था। कोई भी आदमी आता है, एक दिन में डिजाइन तैयार करके रख देता है। लेकिन बैकएंड अभी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और बैकएंड में जॉब्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। Okay, last is from Priyank Raj Trivedi. Good afternoon, ma'am. Stock market is safe in long-term basis.
Is it a question or a statement? लॉन्ग टर्म बेसिस पे हाँ कोई नुकसान नहीं है अगर आप अपने पैसे से और सोच समझ के कर रहे हैं। मैंने भी अपने टाइम में बहुत वो किया था, बट दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, तब ये ऑनलाइन नहीं होता था। आई डोंट नो रजनीश, ये आपका मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? इज स्टॉक मार्केट सेफ इन लॉन्ग टर्म बेसिस? मैं बोलूंगा कि इन्वेस्ट करके भूल नहीं जाना है, आपको देखते तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया और वो अचानक से पैसे बढ़ते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ फॉल बैक भी आ सकता है लॉन्ग टर्म में भी। आपको कंटिन्यूएशन में नजर बनाए रखनी है, और स्पेशली आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका आपको पूरा वो पता रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड इज स्टिल सेफर देन शेयर्स। हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। पूरा पढ़ लो म्यूचुअल फंड के बारे में, और वो मतलब दैट इज समथिंग लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब वो बैंकिंग वाला ही वो है, तो वो इतना ज्यादा रिस्की नहीं होगा। Thank you. Thanks everybody. बिस्वमन, आप बेंगलोर में जो एनजीओज हैं आप उनका पता कर लो, एंड देन यू कैन सी कि वहां पे आपको क्या हेल्प मिल सकती है। जसदीप? Yes, ma'am. Yeah, so it was a wonderful session. Rajneesh, thanks for all the information. I think इसको assimilate करने में भी लोगों को भी time लगेगा because it was so yeah. Thanks a lot. So yeah, I think everybody must have got a lot of information, और आप इसको समझिए and देखिए आप इसको कैसे apply कर सकते हैं, because this is going to help you in a long run. Okay. Thanks a lot, Rajneesh, and thanks a lot to everybody. Thank you so much, Rajneesh, and I mean on a very short notice, and I mean you were really good. You are really very good, and I hope to have more interactions with you. Yeah, sure, ma'am. Thanks on behalf of Team NAB Meerut. Thank you. Yeah. Thanks everyone. And thanks everyone who all attended the session. Thank you.